ایسے کون سے لوگ ہیں، کیا نام ہے ان کے، کون سی شخصیات ایسی ہیں جو کہ آج بھی غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کرتے نظر آ رہے ہیں یا پھر سہولت کاری کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بلال، متعدد ذرائع کا ہمارے پاس باوثوق ذرائع جو ہیں ہمارے بتا رہے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات میں جو سسٹم کے سہولت کار ہیں ان میں سے چند لوگوں کے نام سامنے آئے، جن میں سے سب سے بڑا نام جو ہے کوئی شخص ہیں حمداد اللہ پراچا صاحب اور علی اتاری، اور ایک نئے تعینات شدہ جو کوئٹہ ٹاؤن کے سیکٹری ہیں سلیم، ان کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے۔ اور جو سابقہ سوسائٹی انتظامیہ جو پہلے چلایا کرتے تھے، اس کے سہولت کار کو تو سارا عالم بخوبی جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے بلال؟ یہ لوگ کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی کے تمام غیر قانونی بلڈرز کو آج کل یکجا کرنے میں مصروف ہیں۔ ان سے فی پلاٹ کی رقم جو ہے مختص کر کے مقامی پولیس اور سوسائٹی کے جو اخراجات ہیں وہ تو پورے کر ہی رہے تھے، اور اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کچھ سابقہ سسٹم کے چہیتوں کو درمیان میں ڈال کر نئے تعینات جو ڈی جی ایس بی سی ہے اسحاق کھوڑو اور سینئر اور ایماندار ترین جو ڈائریکٹر ایسٹ اور ڈائریکٹر ڈیمولیشن ہے جمیل میمن اور محمد رقیب، ان کو مبلغ 10 لاکھ روپے فی بلڈنگ کے حساب سے ان کی ایمانداری اور بے باکی کو ان افسران کی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایس بی سی اے نے پہلے بھی کارروائی کی، ابھی بھی ہم خبر نشر کر رہے ہیں، آپ نے پوری انویسٹیگیشن کر کے یہاں سامنے رکھ دیے، پروگرام کا حصہ بن گئی یہ تمام چیزیں۔ کیا لگتا ہے ایس بی سی اے کی کارروائی کیا نمائشی کارروائی تھی؟ دیکھیں بلال، اگر آپ کی بات کو اگر ہم ایک نظر سے اگر ٹھنڈے دماغ سے اگر ہم سوچیں تو کسی طور پر ہمارے کو یہ سوچنے میں جو ہے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایک بلڈر کو نشانہ بنانا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے تو پھر یہ نمائشی کارروائی ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہمارے ذرائع نہیں کہہ رہے۔ اب آپ جائیں وہاں پر کیمرہ اٹھائیں، لوگوں کو جمع کریں، وہاں پر پہنچا کے دیکھیں، کم و بیش 150 غیر قانونی رہائشی بلڈنگوں پہ کمرشل پلازا تعمیرات ہو رہے ہیں۔ تو کیا ایک بلڈنگ غیر قانونی تھی تو اس کا مطلب ہے پھر وہ نمائشی کارروائی تھی یا پھر ان کو ڈرانے کے لیے کی گئی تھی؟ لیکن یہ تعمیرات تقریباً 4 سال سے چل رہی ہے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کم و بیش 300 سے 400 غیر قانونی چھتیں، انفراسٹرکچر، دکانیں، یہ سب تعمیر ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو تھا پچھلے دور کے اندر جو اس دور کے اندر بھی فعال ہے۔ اگر ہم بات کر لیں نئی انتظامیہ کے الیکشن ہونے کے بعد تو پھر یہ آج کی فوٹیجز ناظرین دیکھ رہے ہوں گے یہ کس طرح چل رہی ہے۔ اور بڑے اچنبھے کی اور بڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک جانب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کوئی تقریباً 15 روز قبل ایک ایکشن لیا گیا اللیگل کنسٹرکشن کو جواز بنا کر، تو اس کے بعد یہ کام رکا تو کسی طور پر بھی نہیں، یہ تو کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا ہے؟ کیا ان غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا ہے یا ان سسٹم کے چہیتوں پر؟ یہ کسی کے بھی نہیں ہے بلال۔ یہ آج کے کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تو کل کسی اور سوسائٹی میں گھس جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کہاں جائے گی جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن میں آئے گی، جب ان کے اوپر مسمار کے ڈیمولیشن کے آرڈر نکلیں گے تو جو تنکا جوڑ کر جن لوگوں نے آشیانے بنائے تھے پھر وہ روڈوں پہ آکے بیٹھیں گے۔ تو یہاں پر تو ایک نسلہ ٹاور کی آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ اس بلڈر کو اس کے پاس 50 این او سیز ہونے کے باوجود بھی وہ بلڈنگ غیر قانونی قرار دے کے توڑ دی گئی۔ ان لوگوں کے پاس کیا ہے بلال؟ یہ جو تعمیرات کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، ان کو بلا لیا جائے کسی بھی ادارے کے اندر، ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی این او سی نہیں ہے، 100% ناجائز غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ عوام کہاں جائے گی؟ یہ ایک ساتھ 10,000 20,000 افراد روڈوں پر اپنے آشیانہ بنائیں گے یا پھر اس وقت پھر حکومت کو مرہون الزام ٹھہرائیں گے؟ آخر خود کی بھی تو کوئی اخلاقی جو ہے جرات ہونی چاہیے، کوئی اہمیت ہونی چاہیے، کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان بلڈرز کا کس طرح کلاغما کیا جائے۔ لیکن اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اگر اپنی ذمہ داریوں سے نہیں ذمہ داری پوری کرے گی تو پھر شہری عوام کہاں جائیں، کس کو دیکھیں؟ کیا کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے صرف اور صرف؟ تو پھر ہم ان سے سوال کر لیتے ہیں کہ خدا را کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب آپ آ جائیں، لیڈنگ آف دا فرنٹ آپ آ جائیں،
अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान सिद्दीकी साहब, आप उनकी ड्यूटी लगाएं। वो अपने मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार के साथ मिलकर कोई ऐसा लाएअमल बनाएं कि जो सोसाइटी का विजिट करें, एक एक बिल्डर को नोटिस करवाएं, इनके डॉक्यूमेंटेशन अपने पास बुलवाएं, उनको चेक एंड बैलेंस करें कि क्या वो सच्चे और हम झूठे हैं, क्या हम गलत खबर चला रहे हैं। तो वो उनको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा जब वो अपने पास उनके नक्शे मंगवा लें, उनकी प्लिंथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स मंगवा लें, उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मंगवा लें। जो लोग आबाद हैं उन गैर कानूनी बिल्डिंगों के अंदर, उनका जो खरीदारी के टाइम पर जो उन्होंने एक सेल एग्रीमेंट किया होगा, वो सेल एग्रीमेंट मंगवा लें बिलाल। उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किस तरह इस आवाम को, इस शहर को, इस मुल्क को करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स का टीका लगाया गया है। पता चलेगा उन बिल्डरों के ऊपर वाली जेबों के अंदर ही सिर्फ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए निकल आएंगे, क्योंकि ये आवाम के टैक्स का पैसा चोरी किया हुआ है। ये होते कौन है? ये रिहायशी प्लॉटों के ऊपर कमर्शियल प्लाजा तामीर करने वाले, गैर कानूनी तामीरात करने के साथ साथ इन्होंने वहां पर कमर्शियल शॉप्स खोल दिए हैं। बिलाल, अगर उस इलाके के अंदर कमोबेश 100 दुकानें खुली होंगी, मैं दावे वसूख के साथ कह रहा हूं, कल अपनी टीमें वहां पर तश्कील कर दें, 95% वहां पर स्टेट एजेंसीज खुल गई हैं। ये वो स्टेट एजेंट हैं जो आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, उनको सुहाने ख्वाब सस्ती रिहाइश का दिखाकर उनको जो है इनका माल फरोख्त करने में लगे हुए। बिलाल, इनके खिलाफ भी जालसाजी का, धोखेदही का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम्हारे को किसने अथॉरिटी दी है कि तुम इन रिहायशी 120 गज से लेकर 400 गज तक के जिन पे बंगले बनने थे, मकान बन रहे थे, सिंगल स्टोरी मकानात बनने थे, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, तुमने वहां पर 6-6 मंजिला बिल्डिंग किसके ईमा पे तामीर कर रहे हो। तो ये मैं समझता हूं कि अब सिर्फ और सिर्फ लोग कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब की तरफ देखेंगे और हमारी इस खबर पे वही नोटिस लेंगे कि ये खबर K21 न्यूज चैनल पे जो नशर हुई है उसमें कितनी हकीकत और सदाकत है। क्या ये सिर्फ एक बिल्डर को निशाना बनाने की बात की जा रही है या K21 न्यूज चैनल पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में ये आगाह कर रही है। क्योंकि देखें, हमें कराची की आवाज, हम कराची वालों की बात करेंगे, कोई और बाहर से आके नहीं करेगा। आज ये इनको जो है ना अच्छा सूझ रहा है, सस्ती रिहाइशें मिल रही हैं और इनको बिल्डर माफिया को खुली छूट मिली हुई है। लेकिन कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या अल्लाह ना करे कोई आसमानी आफत आ गई तो इन लोगों का क्या होगा? कोई इनको काम करने का तजुर्बा भी नहीं है। बिलाल, जरा ये बता रहे हैं कि जो बिल्डर जो बिल्डिंगें बना रही हैं ये तो गैर रजिस्टर्ड बिल्डर हैं, इन लोगों के पास तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। इन लोगों को तो सीमेंट का रेशो नहीं पता कि एक छत की भराई के अंदर कितनी ट्रॉलियां क्रश की जाती हैं, कितनी मिक्स की जाती हैं, कितना रेशो के जरिए कितने बाई कितने का जाल बन के स्टील का इसका डिजाइन बनाया जाता है और ना कोई अथॉरिटी आकर चेक करती है। 15-15 दिन के गैप के बाद ये लोग तो छतों को जो भर देते हैं। ये किस तरह ये गैर मयारी तामीरात ये तो जानलेवा भी साबित हो सकती है, इंसानी जानों से खेला जा रहा है ये गैर कानूनी बिल्डर्स की जानिब से। इस पर तो फौरी एक्शन होना चाहिए। तो बहुत बड़ी खबर है कामरान जो आप ब्रेक कर रहे हैं। बिलाल, हमारा यही तो रोना है, हमारी यही तो खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर ही तो यही है कि एक तो है टैक्स की चोरी, चलो भाई पैसों की है आफत, टल जाएगी। एक है लोगों को गुमराह करके, चीटिंग फ्रॉड करके उनको कमर्शियल बताकर रेजिडेंशियल छोटे छोटे दड़बों के अंदर कैद कर देने वाले, जो लोग अपने आबाओ अजदाद के पुराने पुराने घरों से, बड़े बड़े कुशादा कमरों से निकलकर उनको छोटे छोटे दड़बों में कैद कर देना। चलो ये भी अगर कोई मसला नहीं है ना सही, लेकिन जो ये गैर कानूनी तामीरात की जा रही है बिलाल, ये किसकी ईमा पे की जा रही है? अगर इन गैर कानूनी पे, अगर ये तामीरात, अगर इन पे कल को कोई ना कोई अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाती है तो क्या इन बिल्डर्स के खिलाफ, क्या इन सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ, क्या इनके सहूलतकारों के खिलाफ, क्या गवर्नमेंट के सहूलतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आएगी? बिलाल, हरगिज नहीं आएगी। जो ये लोग करोड़ों अरबों रुपए गैर कानूनी तामीरात करके कमा रहे हैं, बाद में ये वही पैसा जो आवाम के खून पसीने का नोच कर इन्होंने जमा किया है, बाद में आवाम की जान के जाने के बाद उन्हीं पर इस्तेमाल करके अपने आप को ये इससे बचाएंगे।
रिश्वत का बाजार गर्म करेंगे। कमिश्नर कराची साहब, इकबाल मेमन साहब, आप मालूमात करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इस कराची शहर के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह आवाम के पैसों को, किस तरह आवाम की लैंड को। और यहाँ पर बिलाल, मैं आपको एक कमिश्नर कराची से आप हमेशा उनका नैरेटिव पूछते हैं, मौक़िफ़ पूछते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। कमिश्नर कराची से इस मौजू पर बात हुई है, गुफ्तगू हुई है कि क्या करने जा रहे हैं कोयटा टाउन सोसाइटी के हवाले से जो तमाम इन्वेस्टिगेशन करके आपने पूरा सेगमेंट किया है? देखें बिलाल, ये कराची वालों के लिए हम ये समझते हैं कि ये सुख का सांस भी है और एक शुक्र करने का मकाम भी है कि इस बार जो कमिश्नर कराची इकबाल मेमन तैनात हुए हैं वो शख्स हैं कि उनसे हमें बात करने की, निशानदेही करने की पर्सनली ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ खबर चलाते हैं, तमाम मीडिया पर्सन्स खबर चलाते हैं, तमाम चैनलों पे खबर चलती है, वो उन तक पहुंचती है, वो उस पर खुद एक्शन ले लेते हैं मेरिट के बुनियाद पर। तो हम ये समझते हैं आज हमने खबर चलाई है, उस खबर की निशानदेही पर मैं ये समझता हूँ और मैं पूरे दावे वसूख के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी खबर पर एक्शन होगा। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब जरूर इस पर एक्शन लेंगे, टीमें तश्कील देंगे। अगर जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ पर कमिश्नर कराची जरूर अपनी टीम के साथ इस पे भरपूर एक्शन भी लेंगे, इस पर जो है नजर सानी भी करेंगे। जिन लोगों को हमने हाईलाइट करा है उन लोगों के बारे में डाटा भी कलेक्ट करेंगे। वरना फिर हम अपील करेंगे कि अगर कोयटा टाउन सोसाइटी वालों को अगर गैर कानूनी तामीरात करने का परवाना जारी कर दिया है तो फिर शहर कराची में किसी को ना रोकें, फिर फेडरल बे एरिया वालों को भी छोड़ दें, फिर गार्डन वालों को भी छोड़ दें, फिर जमशेद और गुलशन इकबाल वालों को भी छोड़ दें, ताकि फिर हम ये कह सकें कि सिंध हुकूमत और इंतजामिया इंसाफ करती है, सबके साथ एक जैसा, किसी एक को नहीं पकड़ती है, छोड़ती है तो सबको छोड़ती है और पकड़ती है तो फिर सबको पकड़ती है। तो फिर हम ये फिर इंतजार करेंगे और आप देखें कि हमारी खबर पे अब क्या एक्शन होता है, किन लोगों का नाम लिया गया है, क्या उन लोगों की क्रेडिबिलिटी किस काम की है, क्या वो लोग गैर कानूनी तामीरात के सहूलतकार और खुद बिल्डर हैं कि नहीं है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे से कोई भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए हो, किसी भी किस्म का प्रूफ चाहिए हो तो हम मौजूद हैं। सहाफती जिम्मेदारियां जब हम खबर चलाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको साबित भी करेंगे। अब टाइम आ गया है कि इस सोसाइटी के साबका और हालिया जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमने जिनके नामों की निशानदेही करी है, जिसमें हमदादुल्लाह पराचा है, अली अत्तारी है और जो नए जो सेक्रेटरी हैं वहां पर सलीम, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए। मैं ये समझता हूं अगर उनके खिलाफ घेरा तंग होगा तो वो लोग सब कुछ सच बताएंगे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग सोसाइटी के शामिल हैं, कौन कौन लोग इनको बनाने में शामिल हैं, वो सब के बारे में मैं समझता हूं इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब तमाम नजरें टिकाए बैठी है अवाम कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की तरफ कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं।